Hello guys, I am Iqbal Rasool. Our today's topic is continuation of the respiratory tract in humans, and the respiratory tract or respiratory system in human is divided into two main zones, that is conducting zone and respiratory zone. We are here dealing with the conducting zone. Now what is conducting zone? In this conducting zone there are so many parts, and now the part today is larynx. This larynx is a cartilaginous structure that connects pharynx with trachea, and this larynx consists of so many cartilages, and the function of the larynx is that it regulates volume of air that enters or leaves the lungs. The larynx is cartilaginous structure and it consists of so many cartilages. But the three large cartilages are: number one, thyroid cartilage; number two, cricoid cartilage; number three, epiglottis. This is also known as anterior cartilage. This is known as inferior cartilage, and this is known as superior cartilage. now हम एक एक करके उनको लेंगे. फर्स्ट वन इज थायराइड कार्टिलेज. This thyroid cartilage is largest cartilage among the three. This is the thyroid cartilage. This portion is from this portion up to this. This is the thyroid cartilage, and it forms a prominence which is known as Adam's apple. This Adam's apple is largest in males and smallest in case of females. Next is cricoid cartilage. This cricoid cartilage forms the rings. Here is the cricoid cartilage. Here is the portion of the cricoid cartilage. This is the thyroid cartilage and this is a cricoid cartilage. And this cricoid cartilage forms the ring with wide posterior region and narrow anterior region. And this cricoid cartilage in turn has three main cartilages. Number one, arytenoid. Number two, corniculatus. Number three, piriformis. These three are attached to epiglottis, muscles, and vocal cords. And these are responsible for the production of the sound. With the help of these cartilages, the muscle fibers, the vocal cords, these move, these vibrate, these move, and this is the reason of the production of the sound in case of human. अब जो next type है, next part है, that is epiglottis. ठीक है.
This is epiglottis. This is epiglottis on the diagram, and this epiglottis is connected to the thyroid cartilage. Okay, and this epiglottis is responsible for, on the one hand it is attached with the thyroid cartilage, on the other hand it is free. Okay, and during the closed position, the free end किसका, ये फ्री एंड किसका था, फ्री एंड ऑफ द एपिग्लोटिस, दिस रेस्ट्स ऑन द ग्लोटिस, रेस्ट्स ऑन ग्लोटिस. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं. उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्लोटिस जो होता है, ग्लोटिस फिर से बता रहा हूं, यहां पे जब क्लोज्ड पोजीशन होती है, द व्हेन इन क्लोज्ड पोजीशन, the free end of the epiglottis rests on the glottis, and this glottis consists of the three main parts, that is vestibular. This consists of the three main folds, that is vestibular fold, number next true vocal cords, and number 3 the space between them. ठीक है, ये जो ग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बाद हमने ग्लोटिस का पोर्शन यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि इसका रीजन है, मैंने ये ग्लोटिस का रीजन यहाँ पे क्यों लिया हम देखेंगे. लेकिन दिस ग्लोटिस कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री मेन फोल्ड्स, दैट इज वेस्टिबुलर फोल्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड स्पेस बिटवीन देम. एंड नाउ व्हाट इज वेस्टिबुलर फोल्ड? नंबर 1, दैट इज वेस्टिबुलर फोल्ड. This vestibular fold is also known as false vocal cords. ठीक है, these are also known as false vocal cords, and these are made up of mucous membrane. उसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा डेट इज ट्रू वोकल कार्ड्स. ठीक है, ये जो ट्रू वोकल कार्ड्स होते हैं, इनके दो एंड्स होते हैं, एक एंड होता है आउटर एंड और दूसरा होता है इनर एंड, टू एंड्स. ठीक है, आउटर एंड एंड इनर एंड. दिस आउटर एंड इज कनेक्टेड विथ arytenoid cartilage and thyroid cartilage. ठीक है, उसके बाद जो इनर एंड है, दिस इनर एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. This inner end is responsible for the movement. This inner end is responsible for oscillation. When we intake air or when we exhale air, this at that time this inner end is responsible for the oscillation. And after that, after oscillation, that means there is a production of the sound, there is a production of speech. And after that उसके बाद क्या होता है, अगर हम देखेंगे, ये जो इनर एंड जो होता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एंड दिस इनर एंड इज लार्ज इन केस ऑफ मेल्स एंड शॉर्ट इन केस ऑफ फीमेल्स. दिस इज द रीजन, इन केस ऑफ मेल्स the sound is hoarse type, and in case of females the sound is shrill type. The reason is that because the inner end of the true vocal cord is large in case of males and smaller in case of females. Glottis is lined by stratified squamous epithelium. And if this transitions into pseudostratified ciliated columnar epithelium. ठीक है,
उसके बाद जो एपिग्लोटिस है, इट आल्सो कंटेन्स द म्यूकस मेम्ब्रेन. दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द goblet cells. These goblet cells, as you know, as you already know, that these goblet cells produce the mucus, and this mucus is responsible for the effluxing of debris, pathogens, or foreign particles. And in case of epiglottis, it consists of the cilia. It contains the cilia. And on beating the cilia, these cilia beat towards the upper portion. These cilia beat towards the upper side, and this mucus is pushed towards the upper side. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है, इसमें सीलिया मौजूद होती है. एंड दी सीलिया, पहले हम देखेंगे ये जो म्यूकस है, म्यूकस कहां से आया? म्यूकस गोबलेट सेल से आया. और उसके बाद उस एपिग्लोटिस में वहां पे सीलिया होते हैं, और वो सीलिया जो होती है उनकी बीटिंग होती है टुवर्ड्स अपर साइड. ओके, जब ये उनकी मूवमेंट अपर साइड होती है, ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स अपर साइड. ओके, समझ में आया? और उसके बाद ये जब अपर साइड में जाता है, उसके बाद इस डायरेक्ट ईसोफेगस में जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी डेब्रिस होगा, अगर कोई भी पैथोजन होगा, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा जो रेस्पिरेटरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा, एंड दिस म्यूकस इज विद द हेल्प ऑफ सीलिया, एंड दिस इज नाउ फ्लक्स्ड आउट इनटू द ईसोफेगस. When it enters into the esophagus, and simply it is digested into the digestive system of the humans. बाद जो next है, that is trachea. This trachea is also known as windpipe. ठीक है, it is also known as windpipe, and it starts from larynx, and finally it enters into the lungs. This is trachea. This is trachea. From this, here is larynx, and after that, then this is trachea, and this trachea consists of 16 to 20 C-shaped hyaline cartilage. ठीक है, उसके बाद जो ये सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज जो 16 to 20 नंबर जो होते हैं, these are connected by the dense connective tissue. के बाद जो ट्राइकिया होता है, इसमें होते हैं ट्राइकियल मसल्स, एंड इट आल्सो कंटेन्स इलास्टिक कनेक्टिव सेल्स और टिश्यू. ठीक है, when these two combine, when tracheal muscles and elastic tissue, elastic connective tissue combine, they form fibro elastic membrane, and this is the membrane which closes the posterior side of the ट्राइकिया. ठीक है, उसके बाद जो है फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होता है, ड्यू टू दिस फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये जो प्रोसेस जो होती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इजी होती है. यहाँ पे इजी पैसेज ऑफ होती है इनहेलेशन के लिए और एक्सहेलेशन के लिए. लेकिन इस फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, ये जो टेंशन और कंट्रैक्शन जो होती है, इट इज ड्यू टू द फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन. एंड द जो रिंग्स उसमें होते हैं, द रिंग्स दैट इज सी शेप्ड जो रिंग्स होते हैं इसमें, these rings are responsible for in order to prevent the trachea from collapsing. ये जो ट्राइकिया होता है कोलैप्सिंग से बचाता है. कौन बचाता है? दैट इज सी शेप्ड रिंग्स which are present in case of trachea, and this trachea is lined by the
pseudo stratified, ciliated, columnar epithelium, bronchial tree, or simply bronchus. ये जो अभी हम पढ़ रहे थे डेट इज ट्राइकिया एंड दिस ट्राइकिया ब्रांचेस इनटू द ब्रोंकस इन लेफ्ट एंड राइट. यहाँ पे ये डिवीजन होती है, बाइफरकेशन होती है, ट्राइकिया की बाइफरकेशन होती है. दिस इज नोन एज लेफ्ट एंड दिस इज नोन एज राइट. ठीक है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस. एंड दिस ब्रोंकस इज आल्सो लाइनेड बाय pseudo stratified ciliated columnar epithelium. ठीक है, उसके बाद जहां पे डिवीजन होती है, जहां पे ये बाइफरकेशन होती है, दिस पॉइंट इज नोन एज कैरिना. ठीक है, ये जो that is this carina is a raised structure. Simply it is a raised structure. And this carina possesses the one of the important characteristic that it contains the nervous specialized nerve which are responsible for the tremendous coughing. ये ट्रिमेंडस काफिंग कब होती है मैं आपको समझाऊंगा. ये जो नर्वस स्पेशलाइज्ड नर्वस जो होते हैं कहां पे होते हैं, कैरिना पे होते हैं. और व्हाई दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कफिंग, स्ट्रॉन्ग कफिंग और ट्रिमेंडस कफिंग क्यों होती है एट द टाइम ऑफ इंटेकिंग ऑफ द फूड. इफ बाय एक्सीडेंटली, अगर एक्सीडेंटली की अगर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट वहां पे क्या होता है, जो फूड होता है इफ इट एंटर्स टुवर्ड्स द ट्राइकिया, अगर ट्राइकिया में गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कैरिना होता है वहां पे स्पेशलाइज्ड नर्वस होते हैं. ड्यू टू दिस स्पेशलाइज्ड नर्वस these cause strong coughing and this food is expelled out from the respiratory tract. This food is expelled out from the trachea, expelled out. उसके बाद जिस तरीके से हमने ट्राइकिया में जो रिंग्स पढ़े इसी तरीके से यहाँ पे रिंग्स होते हैं, इस ब्रोंकस में रिंग्स होते हैं. दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू व्हाट ब्रोंकस. किस लिए ये सपोर्ट है, जस्ट लाइक द सेम इन केस ऑफ ट्राइकिया में जो हमने सपोर्ट पढ़ा है, रिंग्स का सपोर्ट पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसी तरीके से यहां पर भी सपोर्ट और स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू रिंग्स in order to prevent the bronchus from collapsing. उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस जो होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस कौन से ब्रोंकस होते हैं मैं आपको पहले यहाँ पे समझाऊंगा. प्राइमरी ब्रोंकस का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे दिस इज ट्राइकिया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाइफरकेशन जो होती है, दिस इज बाइफरकेशन इज नोन एज नाउ ब्रोंकियल ट्री. ठीक है, दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस, दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस. आफ्टर दैट उसके बाद यहां से और बाइफरकेशन होती है और इनको कहते हैं सेकेंडरी. ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई. और उसके बाद यहां से बाइफरकेशन होती है, उनको कहते हैं टेरिशियरी. ठीक है, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड दीज आर टेरिशियरी ब्रोंकाई. और ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं, ये वेव ब्रोंकाई है, दिस इज द ब्रोंकाई, दिस इज द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड दिस इज द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, and these enter the lungs. This is the left lung. ठीक है, left lung and this is right lung. समझ में आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग. और इसके बाद क्या होता है, दीज प्राइमरी ब्रोंकाई, दीज एंटर द लंग्स, दीज एंटर द लंग्स एट दिस पोजीशन. ये जो यहाँ पे जो मैंने जो पोजीशन बताई, यहाँ पे जो रेड कलर मैंने दिखाई है, उसका नाम होता है हिलन.
this hilum is also responsible for what? This is also responsible at the hilum also lymphatic vessels, blood vessels, and this bronchi enter into the primary bronchi enter into lungs. समझ में आ रहा है कि नहीं? At this point, this is known as hilum. At this point, both all the three lymphatic vessels, blood vessels, and the primary bronchi enter into the lungs. लेकिन ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं ये एंटर होते हैं किसमें? लंग्स में एंटर होते हैं. लंग्स में किस साइड से एंटर होते हैं? ठीक है, लंग्स के दो साइड होते हैं. दिस साइड इज नोन एज कनकेव साइड एंड दिस साइड इज नोन एज कन्वेक्स साइड. एंड द hilum and the hilum is present and the primary bronchi are the simply bronchus enters into the lungs on the concave side. एंड दिस ये जो ब्रोंकस होते हैं हमने यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दिस ब्रोंकस गेट्स बाइफरकेटेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टेरिशरी ब्रोंकस एंड सिंपली इट फॉर्म्स अ ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री. अगर हम एक को लेंगे देन इट इज नोन एज ब्रोंकस. ठीक है, और उसके बाद जो फंक्शन क्या होती है अगर हम फंक्शन देखेंगे ब्रोंकस की फंक्शन देखेंगे इसकी सिंपली दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. ये कंडक्टिव टिश्यू का पार्ट है. आपको पता है ये कंडक्टिव जोन की क्या फंक्शन क्या होती है? कंडक्टिंग जोन की फंक्शन है दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन. एंड यहां पे क्या होता है? दिस इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ एयर. पैसेज ऑफ एयर either to enter either to leave from the lungs, either to enter towards the lungs or to leave from the lungs to outside of the body. अब क्या होता है मैं फिर से बताऊंगा. यहाँ पे दिस इज द प्राइमरी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से फिर से बताऊंगा दिस इज द प्राइमरी, उसके बाद यहां से सेकेंडरी, उसके बाद यहां से टेरिशरी. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंकस. एंड फ्रॉम द टेरिशरी ब्रोंकस से आगे क्या होता है? यहाँ पे ब्रोंकियोल्स होते हैं. ठीक है, फ्रॉम द टेरिशरी ब्रोंकस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोंकियल्स. वहां से अराइज होते हैं ब्रोंकियल्स अराइज होते हैं. एंड एक लंग की बात करेंगे, एक लंग की बात करेंगे 1000 नंबर ऑफ ब्रोंकियल्स आर प्रेजेंट इन ईच हाफ ऑफ द लंग. इन ईच ऑफ द लंग दैट इज either in left lung either in the or in the right lung. There are 1000 number of the bronchioles which arise from the tertiary bronchus. उसके बाद है that is respiratory zone. ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कंडक्टिंग जोन, अब हमको पढ़ना है that is respiratory zone. This respiratory zone is responsible for the exchange of gases. समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा दिस इज अ ट्राइकिया. उसके बाद हम यहां पर आया है प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद आया है सेकेंडरी ब्रोंकस, उसके बाद आया है टेरिशरी ब्रोंकस, और टेरिशरी ब्रोंकस के बाद यहां पे जो फॉर्मेशन होती है डेट इज ब्रोंकियोलस. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये जो ब्रोंकियोल से फॉर्मेशन होती है यहां से फॉर्मेशन होती है एलुविलर सैक्स की. एलुविलर सैक्स की मैं यहाँ पे एक सिंपली यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा. एलुविलर सैक्स की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होती है? सिंपली जो ग्रेप्स जो होते हैं इस तरीके से ग्रेप्स प्रेजेंट होते हैं इन द बंच ऑफ द ग्रेप्स. अगर हम लेंगे वहां पे जो ग्रेप्स अवेलेबल होते हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी जस्ट लाइक द सेम इज द केस हियर. एंड यहाँ पर भी वहां ये जो सैक्स होते हैं दीज आर एलुविलर सैक्स. और ये एलुविलर क्या होता है? एलुविलर क्या होता है? This alveoli is actually a smooth muscle cells. These are simply smooth. Alveoli is simply a smooth muscles, and it also contains connective tissue. And this alveoli is now responsible for the exchange of gases. That is carbon dioxide and oxygen. यहाँ पे जो एलुविलर जो होते हैं एलुविलस क्यों होते हैं? यहाँ पे सैक की फॉर्मेशन क्यों होते हैं? यहाँ पे जो ग्रेप की
फॉर्मेशन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है? दिस इज ओनली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब जाके गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया ज्यादा होने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगी। और उसके बाद क्या होता है, यहां पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से फिर एक सैक बनाऊंगा, दिस इज ए सिंपली, यहां पर सैक है, यहां पर जो सैकस होते हैं, ये जो सैकस होते हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और थ्रू द पोर्स, यहाँ पे जो पोर्स होते हैं किस पे, ये जो सैकस होते हैं उन पे पोर्स होते हैं। दिस वन सैक इज कंबाइन, दिस वन सैक इज अटैच्ड विद द नेबरिंग सैक थ्रू द पोर्स। वाई पोर यहाँ पे क्यों होता है, अटैचमेंट क्यों होती है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स। ठीक है, ये जो सैकस होते हैं एक दूसरे के साथ नेबरिंग सैकस कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं और थ्रू पोर्स अटैच होते हैं। वह अटैच होते हैं क्योंकि वहां पे इन ऑर्डर टू, जो लंग्स में जो एयर प्रेशर होता है इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए ये आपस में अटैच होते हैं। और इसके बाद अगर हम एल्यूमिनर वाल की बात करेंगे, एल्यूमिनर वाल इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री मैन सेल्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स in alveolar wall. Number one, type 1 alveolar cells, type 2 alveolar cells, number 3 macrophages। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद हम देखिए उनकी फंक्शन क्या होती है। ये जो टाइप 1 जो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, and this type 1 constitutes approximately 97% of total alveolar surface area, and this is responsible for the exchange of gases, and this is highly permeable to gases। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज टाइप सेकंड। दिस टाइप सेकंड secretes surfactant, that is it secretes pulmonary surfactant। This surfactant is responsible for what? This is responsible for reduction of surface tension। ठीक है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन इन एल्यूविलाई। उसके बाद जो नेक्स्ट है डेट इज मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं दीज आर सिंपली इम्यून सेल्स, और इनका रोल क्या होता है? इनका रोल यही होता है कि जो म्यूकस का रोल था, जो गॉबलेट सेल से जो म्यूकस रिलीज हुआ था उनका जो रोल था, यहां पर भी उनका मैक्रोफेज का रोल वही है। यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डेब्रिस होगा, यहां पर कोई भी पैथोजन होगा, यहां पर भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, दे रिमूव दिस मैक्रोफेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑफ द डेब्रिस, फॉर द रिमूव ऑफ द पैथोजन एज वेल एज द फॉरेन पार्टिकल्स। उसके बाद हम बात करेंगे डेट इज लंग्स की। ये जो लंग्स जो होते हैं दीज आर द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो लंग्स होते हैं यहाँ पे दोनों फंक्शन होती है, एक फंक्शन डेट इज कंडक्टिंग फंक्शन होती है और दूसरी होती है जो कंडक्टिव जोन की जो फंक्शन होती है और रेस्पिरेटरी जोन की जो फंक्शन होती है। बोथ फंक्शंस आर प्रेजेंट इन केस ऑफ लंग्स। और ये जो लंग जो होते हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल मोस्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
एंड इन लंग्स देयर इज अप्रोक्सीमेटली जो इन केस ऑफ लंग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है, अप्रोक्सीमेटली 70 स्क्वायर मीटर यहाँ पे सरफेस एरिया होता है। और ड्यू टू दिस सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ऑफ द लंग्स इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू and this epithelial tissue is highly permeable to gases। ठीक है, उसके बाद हम अब देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। ये जो लंग जो होती है उनकी शेप होती है pyramid like, pyramid shaped, and these are attached to the trachea, these are attached to the bronchi, as I have shown here, these are attached to the bronchi, and these are paired in number, these are two in number, and these two are left lung and right lung। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, on the inferior side these lungs are enclosed, these lungs are covered by the diaphragm। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, these lungs possess a double walled layer, that is which are attached to mediastinum। ठीक है, एंड दीज लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नाउ उसके बाद अगर हम पार्ट्स की बात करें, दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग। ये जो राइट लंग है इट इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट लंग, बट द लेफ्ट लंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू राइट लंग। और अगर हम लंग की बात करेंगे, ईच लंग कंसिस्ट्स ऑफ द यूनिट्स एंड दिस यूनिट्स आर नोन एज लोबस। ये जो लोबस होते हैं, दीज लोबस आर सेपरेटेड बाय फिशर्स। और अगर हम राइट लंग की बात करेंगे, इन राइट लंग देयर आर थ्री लोबस, एक सुपीरियर, दूसरा इंफीरियर एंड तीसरा मिडल। दिस इज राइट लंग। ठीक है, एंड लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, two lobes, that is superior and number two inferior। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि मैं फिर से यहां पे बताऊंगा, इन लंग्स the lungs internally are divided into the segments, these segments are known as lobes and these lobes are separated by fissures। In case of right lung there are the three lobes, one is known as superior lobe, another one is middle lobe and finally inferior lobe, and left lung consists of the two lobes, that is superior lobe and inferior lobe। जो lungs होते हैं, lungs are covered by pleura। ठीक है, अगर हम राइट लंग की बात करेंगे, राइट लंग इज कवर्ड बाय प्लूरा, देन इट इज नोन एज राइट प्लूरा। अगर हम लेफ्ट के लंग की बात करेंगे, व्हेन द लेफ्ट लंग इज कवर्ड बाय द प्लूरा, देन इट इज नोन एज लेफ्ट प्लूरा। दिस प्लूरा कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। नंबर वन, visceral प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। ठीक है, the cavity between the visceral pleura and parietal pleura is known as parietal cavity, this is known as pleural cavity and it consists of the pleural fluid।
This pleural fluid is developed. This is formed from the mesothelial cells. The functions of the pleural fluid are shock absorbent, lubrication, prevent trauma during breathing, ठीक है। इस लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है, यहाँ से फ्रिक्शन कम हो जाती है। लुब्रिकेशन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होती है। और यहाँ पर और एक होता है कि ड्यूरिंग ब्रेथिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो होती है वो इजी हो जाती है। और इट ऑनर टू दिस आल्सो प्रिवेंट्स द ट्रॉमा ड्यूरिंग ब्रेथ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि दिस प्लूरल फ्लूइड की वजह से यहाँ पे जो लंग्स की जो शेप होती है वो बरकरार रहती है इन ऑर्डर टू रिमेन अटैच्ड, इन ऑर्डर टू रिमेन इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। दिस वाज अबाउट द respiratory system in case of humans. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.